सो देयर इज अ टर्म इंसेस्ट टैबू. सो ल्यूज ने डिफाइन किया इंसेस्ट टैबू व्हाट इज. इट इज incest is a term applied to any prohibited union. तो incest क्या is a term applied to any prohibited union. And prohibition extend to those cousins who are held to be within the family, even though there may be several degrees of biological distance, as they are hardly related at all, or they are hardly related to all. उनके बीच में prohibition होता है. It extend to cousins who are held to be within the family, even those there may be several degrees of biological distance, or they are hardly related at all. So the word incest means sexual intercourse within a closely related person of one's family, like mother, son, brother, sister. So incest means sexual intercourse within a closely related person of one's family, like mother, son, brother, sister, etc. So what is incest? Incest means sexual intercourse within a closely related person of one's family, like mother, son, brother, sister. Taboo क्या होता है? Prohibition of such sexual intercourse on moral basis से बोलते हैं taboo. So incest का मतलब sexual intercourse within a closely related person of one's family, like mother, son, brother, sister, etc. Taboo is like prohibition of such sexual intercourse on moral basis. What are the theories explaining the incest taboo? So there is a psychoanalytical theory, childhood familiarity theory, inbreeding avoidance theory, cooperation theory, family disruption theory. So one theory is a psychoanalytical theory. It is by Sigmund Freud. So psychoanalytical theory proposed by Sigmund Freud. According to this theory, a strong sexual attraction is existing between two persons of a closely related family, like mother, son, father, daughter, brother, sister. So psychoanalytical theory, Sigmund Freud ने बोला, according to this theory, a strong sexual attraction existed between the person of closely related family, like mother, son, father, daughter, and brother, sister, etc. Therefore, if the incest is not socially or morally prohibited, अगर आप incest को socially or morally prohibit नहीं करते, it may lead to sexual relations among the close family member. Therefore, taboo is a way to control such relation. तो taboo क्या is a way to control such relations. कि सेम फैमिली मेम्बर में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है बिटवीन मदर, सन, फादर, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर. अगर हम टैबू के थ्रू इसको अवॉइड नहीं करेंगे तो इट में लीड टू सेक्सुअल रिलेशनशिप अमंग द फैमिली मेम्बर. देयरफॉर टैबू क्या है? इज अ वे टू सोशल कंट्रोल. तो टैबू क्या है? इज अ वे टू कंट्रोल सच रिलेशन. Then there is another theory, childhood familiarity theory. It is by Edward Wester March, 1920. Edward Wester March. So Sigmund Freud कौन है? He was an Austrian neurologist and founder of psychoanalysis, a clinical method for treating psychopathology through dialogue between a patient and psychoanalyst. Freud was born to Jewish parents. वहाँ पे ऑस्ट्रियन एम्पायर में पैदा हुए थे सिगमंड फ्रॉड, ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट. तो इन्होंने दी थी साइको एनालिटिकल थ्योरी प्रपोज्ड बाय सिगमंड फ्रॉड. चाइल्डहुड फैमिलियरिटी थ्योरी दी थी एडवर्ड वेस्टर मार्च 1920s में, प्रपोज्ड बाय EWM. दैट इज एडवर्ड वेस्टर मार्च 1920 में दी थी थ्योरी, चाइल्डहुड फैमिलियरिटी थ्योरी. According to this theory, people who brought up together since childhood like siblings are not usually sexually attached to each other. जो बचपन से ही साथ में बड़े हुए हैं, पैदा हुए, उन पर सेक्शुअली अट्रैक्टेड नहीं होते एक दूसरे से. फॉर एग्जाम्पल, बड़े होकर एक लड़के को लड़की से प्यार हो गया, बचपन में बोला बचपन से तुम्हारे साथ के लिए भाई जैसे देखा है तुम्हें, तो दे आर नॉट सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू ईच अदर. दैट इज नॉट हैविंग सेक्शुअल अट्रैक्शन विद ईच अदर. देयरफॉर सच मैरिज मे नॉट बी सक्सेसफुल. अगर आप ऐसे लोग की शादी करा रहे हो बचपन से साथ में के लिए, तो सच मैरिज मे नॉट बी सक्सेसफुल. तो चाइल्डहुड फैमिलियरिटी थ्योरी प्रपोज्ड बाय एडवर्ड, इट इज प्रपोज्ड बाय एडवर्ड वेस्टर्न मार्च. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, पीपल हु बॉट अप टुगेदर सिंस चाइल्डहुड लाइक सिबलिंग्स आर नॉट यूजुअली सेक्शुअली अटैच टू ईच अदर. एक दूसरे से सेक्शुअली अटैच नहीं होते. दे आर नॉट हैविंग सेक्शुअल अट्रैक्शन विद ईच अदर. देयरफॉर सच मैरिज मे नॉट बी सक्सेसफुल. तो ये है चाइल्ड फैमिलियरिटी थ्योरी बाय एडवर्ड वेस्टर्न मार्च 1920. पहली थी हमारी साइकोएनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉड. सेकेंड है चाइल्डहुड फैमिलियरिटी थ्योरी बाय EWM मीन्स एडवर्ड वेस्टर्न मार्च 1920s. हमारी थर्ड थ्योरी है इनब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी. If incest is not morally prohibited, people may prefer marrying close family member, which may lead to inbreeding and consequent biological degeneration and genetic diseases. तो इनब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी बोलती है कि अगर हम क्या करेंगे, हम अवॉइड नहीं करेंगे इनब्रीडिंग, तो क्या होगा? फैमिली में ही शादी करेंगे, भाई बहन की शादी करा दो, डाउरी की प्रॉब्लम नहीं है, और जो वुमेन की प्रॉब्लम होती है, हत्या हो जाती है, फीटिसाइड हो जाता है, वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है. सेम फैमिली में शादी करा, लड़का नहीं ढूंढना पड़ेगा, कई सालों तक ढूंढना पड़ता है, फिर भी डाउट रहता है कि अच्छा लड़का होगा कि नहीं होगा. तो फैमिली में ही होगा तो ये सब प्रॉब्लम नहीं रहेगी. तो सब लोग प्रेफर करेंगे कि सेम फैमिली में ही शादी हो. तो ये प्रेफर्ड मैरिज होगी, सेम फैमिली में मैरिज, अगर इसको प्रोहिबिट नहीं किया जाए. तो इनब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी तो ये बोलता है कि इसलिए टैबू लेके आए कि ऐसे फैमिली में शादी ना हो, क्योंकि फैमिली मैरिज क्या है? प्रेफर्ड मैरिज है.
तो इनब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी, इफ इंसेस्ट इज नॉट मॉरली प्रोहिबिटेड पीपल में प्रेफर मैरिंग अ क्लोज फैमिली मेंबर विच में लीड टू इनब्रीडिंग एंड कंसिक्वेंट बायोलॉजिकल डिजनरेशन जेनेटिक डिसीज। से क्या होगा, बायोलॉजिकल डिजनरेशन जेनेटिक डिसीजेज आ जाएंगी अगर सेम फैमिली मेंबर शादी करते हो। एरिक्सन ने ये थ्योरी को, इनब्रीडिंग अवॉइडेंस थ्योरी को क्या कहते हैं, रिफ्यूज कर दिया। ही रिफ्यूज दिस थ्योरी सेइंग दैट दोज पीपल इन many cases are ignorant of the positive and negative effects of inbreeding. Avoiding the inbreeding can be consequence of the incest taboo, but it cannot be cause of it. तो एरिक्सन ने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने बोला कि लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है इनब्रीडिंग के। उस टाइम तो बिल्कुल नहीं पता था, तो अब तो पता ही नहीं होता है, तो इसलिए पीपल मतलब नहीं करते। तो इनब्रीडिंग कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंसेस्ट टैबू। इनब्रीडिंग जो भी है, आप इनब्रीडिंग अवॉइड कर रहे हो, इंसेस्ट टैबू का कॉन्सिक्वेंस है, ना कि कॉज है इसका। मतलब अवॉइड कर रहे हो क्योंकि कंसिक्वेंस ऑफ इनब्रीडिंग नॉट कैन नॉट बी कॉज ऑफ इट। इसलिए इंसेस्ट टैबू का कंसिक्वेंस क्या है, आप इनब्रीडिंग नहीं कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसलिए इनब्रीडिंग नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको जेनेटिक डिसीजेस का खतरा है या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। देयरफॉर अवॉइडिंग इनब्रीडिंग कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंसेस्ट टैबू, इट कैन नॉट बी कॉज ऑफ इट। E.B. टायलर की कॉपरेशन थ्योरी, इंसेस्ट टैबू इज नेसेसरी फॉर कॉपरेशन एंड हेल्दी रिलेशनशिप अमंग द फैमिली मेंबर्स। इंसेस्ट टैबू इंपॉर्टेंट है, कॉपरेशन एंड हेल्दी रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स। इंसेस्ट टैबू इन्फोर्सेस अ पर्सन टू मैरी आउटसाइड वंस फैमिली with he is attached to another family. In this way, bond cooperation between family will be strengthened. With that family will be strengthened. तो ये कॉपरेशन थ्योरी क्या बोलती है, सब लोग सेम फैमिली में शादी करेंगे तो सोसाइटी में कभी कॉपरेशन नहीं बढ़ेगा, सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप नहीं बिल्ड होंगे, हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होंगे। तो इससे क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं जब आप सेम फैमिली में नहीं दूसरी फैमिली में शादी करते हो। देयरफॉर इंसेस्ट टैबू इज नेसेसरी फॉर कॉपरेशन एंड हेल्दी रिलेशनशिप अमंग फैमिली मेंबर्स। एंड इंसेस्ट टैबू इन्फोर्सेस अ पर्सन टू मैरी आउटसाइड वंस फुल। तो इंसेस्ट टैबू क्या बोलता है, आपको अपने घर के बाहर ही शादी करनी है, विथ विच ही इज अटैच टू अनदर फैमिली। इससे क्या होता है, वो दूसरी फैमिली से अटैच हो जाता है। इन दिस वे बॉन्ड ऑफ कॉपरेशन विद दैट फैमिली विल बी स्ट्रेंथेड। तो दूसरी फैमिली के साथ भी आपको बॉन्ड स्ट्रेंथेड होता है। तो ये हमारी कॉपरेशन थ्योरी गिवन बाई E.B. टायलर। सो इज एडवर्ड बर्नर्ड टायलर, ही इज अ फाउंडर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इज अ इंग्लिश एंथ्रोपोलॉजी, फाउंडर ऑफ कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, एडवर्ड बर्नर्ड टायलर। Another theory is a family disruption theory given by Malinowski. So Edward Bernard Tyler कहाँ से थे? He was from UK. So he was English anthropologist from 1832 to 1917. And E.B. Tyler ने दी थी cooperation theory by E.B. Tyler. So he was from Poland. So he's a British Polish anthropologist whose writing on anthropography, social theory and research have exerted a lasting influence on discipline of anthropology. So Bronislaw Malinowski from Poland. Bronislaw Malinowski from 1884 to 1942 was born in Poland. He's Polish-British anthropologist. Malinowski ने दी family disruption theory. Sexual relationship within the family would create many rivalries, jealousy, enmity and tension and disturbance which will affect द फंक्शनिंग ऑफ अ गुड फैमिली। तो अगर सेम फैमिली में सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं तो जेलसी आएगी कि मेरे साथ क्यों नहीं है, उसके साथ क्यों नहीं है, तो फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। देयरफॉर इंसेस्ट टैबू इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फैमिली मेंबर फ्रॉम डिस्टर्बेंसेज एंड राइवलरीज। और सेम फैमिली पता है कि भाई बहन को एक साथ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, तो आराम से पेरेंट्स भेज सकते हैं भाई बहन को। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी अगर इंसेस्ट टैबू नहीं होगा। तो इसलिए इंसेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for avoiding family disruption. तो family disruption theory is given by Malinowski. फॉर एग्जाम्पल जेलिसी कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड को अपने लड़के से जेलिसी हो जाएगी कि मेरी वाइफ पे लाइन मार रहा है, या बेटी को सपोज प्यार हो गया अपने फादर से, तो ये अपने वाइफ मदर से जेलिसी करने लगेगी कि मेरे मदर के पास क्यों है। तो इस तरीके से फैमिली और ये फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी अगर यहाँ पे इंसेस्ट टैबू जैसी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये फैमिली डिस्ट्रप्शन थ्योरी गिवन बाय मैलिनॉस्की।